Hello learners, in today's video we are going to talk about Kurunthokai poem 1 to 10 translated by C. Rajeshwari. Dr. C. Rajeshwari, she is modern scholar, translator of English Tamil literature. She is researcher of MGR films and politics. Now let's talk about Kurunthokai. Kurunthokai का मतलब होता है short collection and this particular book consists around 400 short poems. Each poem is very brief, often just a few lines, but dense with meaning. ये जो poems हैं ये बहुत ज़्यादा short हैं, कम से कम बहुत ही few lines में लिखी गई हैं, but इनकी जो meaning है वो बहुत ही depth में है और बहुत ही ज़्यादा dense है. कुरुंथोगई जो है वो अक्कम पोइट्री से बिलोंग करती है, and अक्कम पोइट्री deals with love and relationship, emotional states, inner life rather than public action. The poem follow a highly structured system where landscape represent emotion. द तिनई सिस्टम. जो पोएम्स लिखी गई हैं वो तिनई सिस्टम को फॉलो करती हैं जहाँ पे लैंडस्केप को यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट इमोशन. कुरुंथोगई डज नॉट हैव अ सिंगल ऑथर, इंस्टेड इट इज़ एन एंथोलॉजी कंपोज्ड बाय मेनी पोएट्स ड्यूरिंग संगम पीरियड. कुरुंथोगई का कोई सिंगल ऑथर नहीं है, इंस्टेड देर आर सो मेनी पोएट फ्रॉम संगम पीरियड और उनसे उन्होंने जो कंपोज करी है पोएम उसको कलेक्ट करके कुरुंथोगई बनाया गया है. ये संगम पीरियड से बिलोंग करते थे पोएट्स फ्रॉम 300 BC to 300 CE. Now let's see the conceptual framework of poem number 1 to 10. These poems operate through three key ideas. First is Akkam poetics. So ये जो poems हैं ये तीन key ideas से deal करते हैं. First idea is Akkam poetics. Akkam poetics जो है वो love, subjectivity, emotional states इन सब पे focus करता है. And there is no proper name. Characters are like type of hero, heroine, friend and mother. जो characters हैं इस poem में उनका कोई नाम नहीं है. They are like कोई hero है, कोई heroine है, friend है और mother है. The second idea is तिनई system, जहाँ पे poem जो है वो emotion को represent करता है through landscape. Like mountain को use किया गया है to represent union of lovers. Forest को represent कर रहे हैं, forest represent कर रहे हैं waiting को, फार्मलैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइट को, सी सोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉन्गिंग को एंड वेस्टलैंड फॉर हार्डशिप. द थर्ड आइडिया इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. ईच पोएम इज अ फ्रेगमेंटेड of large situation often spoken by heroine, her friend, hero, occasionally mother और messenger. ये पोएम जो है वो फ्रेगमेंटेड है विथ अ लार्ज सिचुएशन, मतलब हर पोएम जो है वो हर एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट देर आर डिफरेंट पोएम विच इज़ रिटन ऑन देम बिकॉज दोज पोएम्स आर वेरी शॉर्ट इन नेचर. एंड ये जो पोएम्स हैं ये किसी ना किसी कैरेक्टर का डायलॉग है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा गया है. लाइक कोई डायलॉग जो है वो हीरोइन का है, other poem is about the dramatic monologue of her friend, some of the hero and sometime mother or messenger. Now let's see the poem. Poem number 1 की जो speaker है that is the heroine. Theme use किया गया है secret love और union का. And if we see the explanation of poem number 1, the heroine expresses her deep emotional attachment to the hero. The natural setting reflect intimacy और union. यहाँ पे हीरोइन जो है पोएम नंबर 1 में हीरोइन अपने डीप इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि उसको कितना ज़्यादा अटैचमेंट है हीरो से. सो इफ़ यू सी द इनसाइट ऑफ पोएम नंबर 1, लव इज़ प्रेजेंटेड एज नेचुरल एंड इनअवॉइडेबल येट हिडन फ्रॉम सोसाइटी. सो यहाँ पे लव को रिप्रेजेंट किया गया है बिकॉज एज नेचुरल हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टिल वी keep it hidden from society. Now the second poem is about the protection of love and the speaker is friend. The friend speaks on the behalf of heroine, possibly defending the relationship or managing secrecy. So यहाँ पे जो speaker है वो heroine के behalf में बोल रहा है, उनके relationship को defend कर रहा है और somehow जो secrecy है उस relationship की because they have kept it hidden from the society, तो उसको manage कर रहा है. If we see the inside of the poem number 2, the friend acts as a mediator between personal desire and social norms. Poem number 3 is based on the theme emotional intimacy of love. Speaker यहाँ पे heroine है and heroine compares her feeling with element of nature suggesting overwhelming passion. Heroine जो है इस poem number 3 में वो अपने feelings को compare करती है nature से और वो बताती है कि जो उसका passion है that is overwhelming now.
इनसाइट अगर हम देखें पोएम नंबर 3 का, दैट इज़ दैट हाउ नेचर बिकम्स अ मिरर ऑफ इनर इमोशन, कि हम नेचर को एज अ मिरर यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। पोएम नंबर 3 इज़ बेस्ड ऑन द थीम एंग्जाइटी ऑफ सेपरेशन, और इसके स्पीकर हैं हीरोइन। द हीरोइन बिगिंस द फीलिंग of uncertainty about the hero's absence or delay. If we see the inside of this poem, shift from union to emotional vulnerability. Now, heroine जो है वो यहाँ पे uncertain फील कर रही है because hero का absence फील हो रहा है उसको, and the delay of hero's absence, hero's presence, उसकी वजह से she was feeling anxious and uncertain. और यहाँ पे जो यूनियन का इमोशन था उसको कहीं ना कहीं इमोशनल वर्नेबिलिटी पे शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ पोएम नंबर 5 इज अबाउट द थीम ऑफ consolation and the speaker is friend. The friend reassures the heroine suggesting that the hero's absence is temporary. Now जो friend है वो reassure कर रहा है हीरोइन को कि जो हीरो का absence है वो temporary है और वो कभी ना कभी वापस आएगा। If we see the insight of poem number 5, it's highlight female solidarity and emotional negotiation. Then poem number 6 is about inner conflict and the speaker is the heroine. पोएम नंबर 6 में हीरोइन जो है वो स्ट्रगल करती है बिटवीन ट्रस्ट एंड डाउट रिगार्डिंग द हीरोज़ लव। नाउ जो हीरोइन है वो क्वेश्चन करती है अबाउट हीरोज़ लव, और वो उस पर ट्रस्ट भी करती है और डाउट भी करती है। सो दिस पोएम इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल रियलिज्म, लव इज़ नॉट आइडल बट कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल रियलिटी को प्रेजेंट किया गया है कि कैसे जो लव है वो आइडल भी होता है एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ पोएम नंबर 7 वी हैव थीम ऑफ डिले इन मैरिज एंड द स्पीकर इज हीरोइन। द हीरो डिलेज फॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप क्रिएटिंग सोशल टेंशन। नाउ हीरो जो है वो मैरिज में डिले कर रहा है एंड दिस काइंड ऑफ क्रिएट सोशल टेंशन। द इंसाइट इन दिस पोएम इज दैट लव मस्ट अलाइन विथ सोशल अप्रूवल नॉट जस्ट इमोशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लव जो है उसको सोशल अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ इमोशन की। पोएम नंबर 8 इज़ अबाउट मीडिएशन एंड द स्पीकर इज़ फ्रेंड। द फ्रेंड कम्युनिकेट्स बिटवीन लवर ट्राइंग टू रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस। नाउ यहाँ जो फ्रेंड है वो इन दोनों लवर्स के बीच में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू रिजॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। द फ्रेंड इज़ क्रूशल इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन लव एंड सोसाइटी। इंसाइट इस पोएम का ये है कि कैसे एक फ्रेंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करता है लव और सोसाइटी के बीच में। पोएम नंबर 9 इज़ अबाउट द हीरोइंस कंप्लेन और माइल्ड अप्रोच एंड द स्पीकर इज़ द हीरोइन। द हीरोइन सटली क्रिटिसाइज द हीरो फॉर निगलेक्ट और डिले। यहाँ पे पोएम नंबर 9 में हीरोइन जो है वो हीरो को क्रिटिसाइज कर रही है बिकॉज ही वॉज डिलेइंग इन द मैरिज। And the insight of poem number 9 is that tone is not harsh, it is controlled and indirect, typically of संगम style. यहाँ पे इवन दो हीरोइन जो है वो कंप्लेन कर रही है लेकिन टोन इस पोएम का वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है और इनडायरेक्ट है, जैसे कि संगम पोइट्रीज में लिखा जाता था। संगम पीरियड में जैसे पोएम्स लिखे जाते थे वही टोन यूज़ किया गया है यहाँ पे। नाउ द लास्ट पोएम इज़ द पोएम नंबर 10 and the speaker is the heroine. थीम यहाँ यूज़ किया गया है about longing and emotional depth. The heroine expresses deep longing, possibly fearing abandonment. So यहाँ पे जो हीरोइन है वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है कि शी वॉज लॉन्गिंग विद द प्रेजेंस ऑफ हीरो। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हीरो वहाँ पे नहीं है और उसको डर लग रहा है कि वो उसको छोड़ देगा। If we see the inside of poem number 10, love reaches a state of emotional maturity and vulnerability. So love जो है वो एक emotional maturity के भी stage पे पहुँचता है and at the same time it could be vulnerable. So this is all about Kurunthokai, poem 1 to 10 translated by C. Rajeshwari. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.